उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज प्रेजेंट्स 4 PM न्यूज चाय पे चर्चा। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चाय पे चर्चा एट 4 PM न्यूज में उमिया सोशल ट्रस्ट वलसाड़ द्वारा थैंक्स टू वलसाड़ परियोजना के तहत आयोजित थैंक्स टू वलसाड़ जो 28/7/2024 यानी कि कल रखा गया था, जिसमें श्री सौराष्ट्र पाटीदार पटेल समाज की वाड़ी धर्मपुर चौकड़ी वलसाड़ में विवेक स्वरूप दास जी कुठारी स्वामी मुख्य अतिथि के स्वरूप में वहां पर आए थे। कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई, भारत सरकार खादी आयोग के श्री ललित भाई गुगलिया जी उपस्थित रहे थे। यह कार्यक्रम उमिया ट्रस्ट द्वारा 3 वर्षों तक 4000 पेड़ लगाने और उनका पोषण करने की प्रतिबद्धता के लिए दानदाताओं को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया गया था। 1400 पेड़ों के दाता परम इंफ्रास्प्रेस और 1000 पेड़ों के दाता श्रीमती रैनाबेन विश्वास भाई सेठ ने इस परियोजना के अपना योगदान दिया और वलसाड़ के पर्यावरण प्रेमी इसे पूरा करने के लिए 1, 2, 5, 10, 100 पेड़ों तक का दानदाता बने। लक्ष्य था 4000 पेड़, लेकिन देखते ही देखते लक्ष्य आसानी होता गया। राजकोट के वर्षों के अनुभव को इस वृक्षारोपण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वलसाड़ की कहानी कहता भव्य नाटक हूँ वलसाड़ छूं। वलसाड़ के गणमान्य नागरिक, दानदाता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पत्रकार मित्र एवं मीडिया मित्र वाह विभोर हो गए। उमिया ग्रुप उन सभी जागरूक नागरिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस परियोजना को समर्थन किया और इसमें भाग भी लिया। आपको बता दें कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी में औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इस वर्ष हमने देखा जो कभी ना हुआ, वलसाड़ जिले में, वलसाड़ के हर कोने कोने में इस वर्ष इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। 4 से 5% गर्मी हर साल की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा। हम सब इस गर्मी को महसूस किया है और इस गर्मी के एहसास ने हमें फिर एक बार एहसास करवाया है कि कहीं ना कहीं हम इंसान, हम मानव जाति ही जिम्मेदार है। इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह हम खुद जिम्मेदार है। लेकिन उमिया सोशल ट्रस्ट द्वारा एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम उठाया गया है। સાથે સાથે જે સોશિયલ વર્કની વાત કરી, આપણે જોઈએ તો આપણો વિસ્તાર ઔદ્યોગિક વિસ્તારથી, ઔદ્યોગિક કારખાનાઓથી ભરપૂર છે, ત્યારે ઔદ્યોગિક વિસ્તારના લોકો પણ અખંડ રીતે વૃક્ષારોપણ કરે છે। હંમેશા આપણે જોઈએ તો આખા ગુજરાતની કે ભારતની જે જીઆઈડીસી છે એમાં વાપીનું જે રીતે વૃક્ષારોપણ થયું છે એ સૌથી બેસ્ટ છે અને સૌથી વધારે છે એમ કહી શકાય તો ખોટું નથી। આપણને લાગતું નથી કે આપણે એસ્ટેટમાંથી પસાર થઈએ છીએ। અને જો દર વર્ષે આ રીતનું વૃક્ષારોપણ થતું હશે, આ વલસાડમાં જે રીતે ઉમિયા સોશિયલ ગ્રુપ અશોકભાઈએ શરૂ કર્યું છે, 4000 વૃક્ષો રોપાયા છે અને એ 4000 વૃક્ષો ચોક્કસ રીતે જીવવાના છે એવી મને ખાતરી છે। અને દર વર્ષે આમાં વધારો થતો જ રહેશે તો આપણો એક વિસ્તાર, એમાં આપણે અનુભવશું। જાણીએ છીએ કે વાપીથી તાપી પરશુરામની ભૂમિ છે અને આખો ભારત દેશ એ કૃષ્ણ અને રામની જન્મભૂમિ છે। આપણા દર્શકોએ કીધું કે આપણે સિલિન્ડર લઈને ફરવું પડશે, ફરવું નહીં પડે। ઘણા બધા પ્રયત્નો એ રીતના શરૂ થયા છે અત્યારે કે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સૌ પ્રથમવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી ગુજરાતમાં 2007માં સોલાર પોલિસી દાખલ કરી। સોલાર એક ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે। સોલારની સાથે સાથે પવન ઉર્જા સમગ્ર વિશ્વમાં જે સમસ્યા છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ક્લાઇમેટ ચેન્જને કંટ્રોલ કરવા માટે મોદીજીએ આખા એશિયામાં સૌ પ્રથમવાર ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભું કર્યું। અને ક્લાઇમેટ ચેન્જને કંટ્રોલ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ
મોદીજી વડાપ્રધાન થયા પછી એમણે જીનીવામાં જે કોન્ફરન્સ લીધી એમાં 2070માં આખી દુનિયાને ઝીરો કાર્બન બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે અને એમાં આપણા ભારતે 2030માં જે કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરવાનો છે 50% ઘટાડો આપણા ભારતનો ચોક્કસ થવાનો છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણો દેશ ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ એટલી સરસ જગ્યાએ આવેલો છે કે આપણને સમુદ્ર અને પવન બંને મળે છે અને સૂર્ય પણ મળે છે. એટલે મોદીજીએ જે શરૂઆત કરી છે ગુજરાતમાં એમાં સોલાર અને પવન ઉર્જામાં આખા દેશમાં આપણું ગુજરાત રાજ્ય 22,000 મેગાવોટ સાથે નંબર 1 પર છે. આપણે જે વૃક્ષો રોપીએ છીએ એનાથી ચોક્કસ ફાયદો થવાનો છે અને વધુમાં વધુ વૃક્ષારોપણ કરવું જ જોઈએ. અને આપણે નસીબદાર છે કે આપણા વિસ્તારની જમીન અને આપણા વિસ્તારનું પાણી આ વૃક્ષોને એકદમ અનુકૂળ આવી શકે એવું છે અને એના લીધે આપણા વિસ્તારમાં વરસાદ પણ સૌથી વધુ પડે છે. सभी लोगों ने दिया जलाकर संकल्प लिया। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन मैंने देखा और शक बज गया, मतलब कि बहुत ही शुरुआत भी शुभ था और अंत भी शुभ हुआ है। और इसके बाद जब होगा तो सही बात मायने में वलसाड़ में एक इतिहास रचेगा। हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद कम से कम एक व्यक्ति एक वृक्ष तो जरूर उगाएगा और उसका उगाने के बाद उसका संभाल जरूर रखेगा, क्योंकि सिर्फ वृक्ष उगाना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, सही कहा है हमारे शैलेश सर ने कि माँ जैसे बच्चे को जन्म देती तो उसकी संभाल भी रखती जब तक वो बड़ा नहीं होता। वैसे ही वृक्ष को उगाने के बाद उसका पूरा ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। आइए आज के प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर, जो क्रिएटिव हेड है, जो डायरेक्टर, जिन्होंने पूरी कहानी रची है, पूछते शैलेश जैन सर से कि आज की इस कहानी के पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे उनकी कितनी मेहनत थी, टीम ने कितना मेहनत किया, कितना विकसित प्रोजेक्ट में उन्होंने मेहनत करी है, जानने का पूरा प्रयास करें उन्हीं के शब्दों में। सर से बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे डिजिटल भारत न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट 1-2 महीने पहले शुरू हुआ, 2 महीने, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी स्थिति आई जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे की तरफ कैसे समझ में आया, दिमाग में आया कि प्रोजेक्ट करना चाहिए वलसाड़ के लिए? रीजन क्या हुआ कि गर्मी के मौसम में ऐसी हालत हो गई थी कि स्थिति ऐसी आई थी कि उसके 40-45 डिग्री तक तापमान बढ़ गया था। और उस स्थिति के अंदर अगर वलसाड़ के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमारे लिए बहुत सोचने जैसी बात हो गई थी कि हमको ऐसा लगा था कि सच में अब वलसाड़ को अगर थार जैसा नहीं बनाना, रेगिस्तान जैसा नहीं बनाना है तो अब उनको वापस से सोचना शुरू करना पड़ेगा। वहां से सोच शुरू हुई और तब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जब एक ग्रीन वलसाड़ हम लेके जाएंगे तो शायद प्रोजेक्ट उसी टाइम पे से शुरू हो गया था। मैंने फर्स्ट मीटिंग इन लोगों से साथ की थी, यहाँ पे ही हुआ था मीटिंग, और उस दिन ही मैंने ये बोल दिया था प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। सबको मालूम होगा ये बात कि मैंने ये बोल दिया था कि प्रोजेक्ट देखने से ज्यादा ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। मेरी डायरी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट में लिखता हूँ, उस प्रोजेक्ट की लिस्ट में इसका एक नाम चला गया। मैं ये सोचता हूँ कि प्रोजेक्ट नहीं था, मेरी ये सोच थी कि लोगों के सामने मुझे रखना था कि सच में मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी एसी के बगैर नहीं चल रहा था। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो लोग कहाँ जाएंगे? हम जब एसी में बैठे हैं ऐसी स्थिति में, तो बाकी लोग जो रास्ते पे रहते हैं उनकी क्या हालत होगी? और जब रास्ते में लोगों की ऐसी हालत तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? तो वो सब की एक सुरक्षा के लिए मुझे ये रखना था। शायद इसमें से इतने पेड़ तो लगने वाले हैं जो पीछे आपके साथ खड़े हैं, उसमें से कम जितने लोगों के पेड़ लग गए तो मेरी ये सफलता सफल हो जाएगी। 100 पेड़ का कर दिया वादा। चलो ठीक है, उज्जवल भारत की तरफ से भी 100 पेड़ आए हैं तो शायद वो पेड़ बड़े होके आपकी ही जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जनरेशन को ये क्या देके जाएंगे? बंगला देके जाएंगे, गाड़ी देके जाएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। वो शायद ऊपर नीचे हो सकता है, वृक्ष देके जाएंगे तो शायद ये बहुत बड़ी क्रांति। सर मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि हमारे जैसे जो आज के आधुनिक युग के जो व्यक्ति है ना, भले कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी वो घूमना फिरना पसंद करते, प्राकृतिक सुंदरता के लोकेशन पसंद करते हैं, जहाँ पे झरना बहती हो, जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे रेगिस्तान वहाँ पे नहीं, जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे फूल हो, लेकिन उसको वो उगाना या उसका वो संभाल रखना नहीं चाहते, ये विडम्बना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये सबसे बड़ी चीज क्या है, जब अपने ऊपर लगेगी ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब उसको मालूम पड़ेगा कि इसके बगैर हमको नहीं चलने वाला है
वो अपने आप उस चीज को स्वीकार करता है। कहते हैं ना, दूसरों के घर में चोरी होती है तो मालूम नहीं पड़ता, जब अपने घर में चोरी होती है तो दुख अपने आप समझ में आता है। लेकिन ये ठीक है, जब तक ये शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, जहाँ उमिया सोशल ग्रुप के साथ हमने मिलकर अगर ये प्रोजेक्ट रखा है, उसके बाद उन्होंने बहुत प्रोटेक्टिव आपको किया है, हाँ। तो उनके क्या सोच सकते हो आप? उमिया सोशल ग्रुप के साथ मेरा फर्स्ट, लेकिन उन्होंने देश के लिए, उन्होंने रक्तदान के लिए बहुत किया है, बहुत हर सोशल वर्क में रहे। लेकिन मैंने उनके साथ ये प्रोजेक्ट किया तो मैं खुश हूँ कि मैंने शायद इनके साथ ये उनका जो सपना था वो मैंने पूरा किया। उन्होंने एक शुरुआत संकल्प किया था, उस संकल्प को लोगों तक पहुंचाया। तो मैं चाहता हूँ भी हूँ कि पूरी टीम, हमारी जो ग्रुप की टीम है, जिन्होंने मेकअप किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, ये पूरी की पूरी टीम भी इसके लिए है कि भाई आज की नाटिका जो सफल हुई उसमें जितनी ऑडियंस है, जितने ही लोग, सभी लोगों का धन्यवाद है। तो जितनी टीम वर्क में दिया प्रकट किया ना, उस दिए के टाइम पे जितने भी लोग थे वो भी खड़े हो गए। तो मेरा यही शायद है कि अपने में क्या शक्ति है, तो कि अपने में ये शक्ति जब अपन खड़े हो जाए तो दूसरे लोग भी खड़े हो जाते हैं। ये सपने, हमारा ये सपना पूरा हुआ। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कि मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आप भी इस वृक्ष के अंदर आए, और आपकी तरफ से वृक्ष होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए उज्जवल भारत में। हाँ, तो उज्जवल भारत लिखा होना चाहिए। और जब 50 साल बाद जब दादी की उम्र तक आप आओ ना, उसके बाद में आप उस वृक्ष को देखने आना और वो बोलना कि ये पक्का वादा है। और ये उमिया सोशल ट्रस्ट का एक वादा है कि इन्होंने बोला है कि वृक्ष बड़ा करके देंगे, तो ये बच्चे को बच्चा छोड़ेंगे नहीं, बड़ा करके देंगे आपको। ये मेरा ये शायद अपना एक ट्रस्ट है। और मैं चाहता भी हूँ कि वलसाड़, खाली वलसाड़ तक ये बात सीमित नहीं रहे, बाकी गुजरात तक पहुंचे, इंडिया तक पहुंचे, और इंडिया के बाद में इंडिया एक आइडल बन जाए कि ग्रीन वलसाड़, ग्रीन गुजरात या ग्रीन इंडिया क्या होता है, वहां तक अपने को पहुंचना है। और मैं सबको शुभकामना दूंगा कि इसी तरह से प्रोजेक्ट लाके दुनिया के सामने रखे। और ये सवाल था लोगों के सामने लाने का, जरूरी था। इनका जवाब इनके पास ही होगा, और जितनी भी जनता बैठी थी उन सबको ये सवाल का जवाब मैं अंत में जोड़ना चाहूंगी, इन्होंने जो कैरेक्टर्स दिया है, हवा, पानी, वृक्ष, गौ माता और किसान, साथ में इन्होंने जो एक मानव दृष्टि से देखा गया है, जो इन्होंने उनकी जो दर्द को दिखाए गए हैं, सही मायने में यही हो रहा है हमारे देश का वास्तविकता। आज पृथ्वी में जो हो रहा है वो यही सब हो रहा है, और इन्हीं को इन्होंने आज स्मार्टफोन के जमाने में, टेक्नोलॉजी जमाने में इस प्रकार के नाटक को हम लोग ने देखना कहीं ना कहीं छोड़ गए, भूल गए हैं। साथ में बैठ के इकट्ठा करके देखना कहीं ना कहीं छूट गया है। लेकिन आज इन्होंने जो आज मंच पर लाइव प्रेजेंटेशन किया है, वो कहीं ना कहीं पुराने जमाने का मुझे याद दिला देता है। और इस प्रकार के मैं समझती हूँ कि प्रोजेक्ट हर महीने एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लोग एकत्रित हो पाए और बात को समझने का जो प्रयास है, उनका सकारात्मक जो सोच है, उसका सही मायने में काबिल तारीफ है। आपने जो सोच रखी है सबको साथ में लाइव मंच पर लेके आना, ये बहुत आसान नहीं था। मंच पर एक साथ खड़े होकर एक्टिंग करना इट्स नॉट एन इजी वर्क। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। मैं कहूंगी कि तारीफ करूंगी ऑडियो विजुअल साउंड की, एडिटिंग, बैकग्राउंड जो वीडियो चल रहा था, इट वॉज सुपर्ब। मैं भी एक एडिटर हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। एक 10 सेकंड का वीडियो भी एडिट करना हो तो वो आवर्स लगते हैं, घंटे लगते हैं। आपने एक आधे घंटे का पूरा मूवी जैसे मंच पे चलाया है लाइव, बिना किसी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर। इट्स रियली सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू यू शैलेश सर। ये आप ही कर सकते हो वलसाड़ में, और शायद कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने सबसे पहले प्रेरणा ली शनिदेव से, गणपति से शुरुआत की, शनिदेव से प्रार्थना की, और सबसे पहला आशीर्वाद दिया उमिया माता से। इनको किसी को मालूम नहीं है, और बहुत अच्छी चीज है कि मैं ये सोचता हूँ कि खुद उमिया माता ने ये प्रोग्राम पूरा करा है। देखिए, अपने लिए तो सब करते हैं जी, अपनों के लिए भी करते हैं, जो किसी के लिए करते हैं उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा। अंत में इतना जोड़ना चाहूंगी, जो मुहिम उमिया ट्रस्ट ने जो लिया है, उठाया है, पहले वो करते थे रक्त क्रांति, मैं बोलूंगी कि रेड रेवोल्यूशन को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया था, ब्लड डोनेशन करके, लेकिन अब उन्होंने हरित क्रांति की तरफ भी आगे कदम बढ़ाया है। तो उमिया सोशल ट्रस्ट जो भी वादा करती है, जो सोच रखती है, उसे वो इम्प्लीमेंट करती है और उसे समाज तक पहुंचाती है। ये मैंने खुद ने भी देखा है। तो उमिया सोशल ट्रस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और साथ में हमें नवरत्न टैलेंट जो प्रतिभाओं पर कूट कर पहचानते हैं, कूट कर निकाल कर मंच पे प्रेजेंट करते हैं, कि सच में पहले सर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक टीम वर्क था। टीम वर्क में रमेश भाई, हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स है,
ये मुन्ना भाई है, हमारे जो मेकअप वाले जो टीम है, जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं वो सबका काम होता है। विनोद भाई है जो लाइट वाले हैं। सिर्फ अपन क्या सोचते हैं कि ये प्रोग्राम मैंने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो वहाँ पे बैठ के खाली सोच रहा था कि मेरा इमेजिन किया हुआ काम पूरा होना चाहिए। बाकी माता जी ने सब तैयारी करके रखी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उमिया माता की जयकारे के साथ में ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। बोलो उमिया माते की 2000 पेड़ लगाने की बात की, लेकिन आज ज्यादा पेड़ लगाया जाएगा, ऐसा उमिया ट्रस्ट के द्वारा आज ये प्रतिज्ञा ली गई है, इन्होंने संकल्प लिया है। आइए बात करते हैं उमिया ट्रस्ट के सोशल ट्रस्ट के अशोक जी से। अशोक पंडित जी, તમારું ખૂબ स्वागत करूँ છું। बहुत स्वागत है आपका। और आज की इस मुहिम के पीछे क्या उद्देश्य है? लेकिन सही मायने में देखा गया है तो आज जो पृथ्वी पर प्रदूषण और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए जो मुहिम चलाया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है आपका? देख रहे हैं कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी जो पड़ी है, जो 4-5 डिग्री बढ़ी है, उसके उनका रहना जीना मुश्किल हो गया। अब यही एक पोजिशन रही, शायद अगले 10 साल के बाद ऐसा 50-60 डिग्री हो जाएगा, तब मनुष्य का जीवन ही मुश्किल व्यर्थ है। इसको बचाने के लिए कोशिश करा उमिया सोशल ट्रस्ट ने, एक मुहिम बनाई और एक 5 जून पर्यावरण के दिन में एक संकल्प लिया। 2000 वृक्षों को वलसाड़ में खाली उसको लगाना नहीं है, उसको निभाना है और उसको बड़ा करना है, उसका एक संकल्प किया था, जो वृक्षारोपण के दिन 2000 से लेकर 4000 तक पहुंच गया। वलसाड़ की जनता का बहुत ज़्यादा सहकार मिला है और उसको 3 साल तक बड़ा करके उसको पूरा पेड़ बनाएंगे, ये हमारा उमिया सोशल का संकल्प। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि केरला में एक ऐसी जमीन थी जहाँ पे कुछ नहीं उगता था, तो वहाँ पर किसी फिल्म डायरेक्टर ने रोजाना 1200 पेड़ लगाए थे और आज वहाँ पर जटायु पार्क बन के खड़ा हो गया है। आज वहाँ पे करीब 20 लाख पेड़ है और वो एक घने जंगल की तरफ वो एक आज पूरा उभर कर आ गया है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में इसके आगे आपको क्या करना रहेगा? आशा है यदि लोगों का सहकार मिलता रहा और हम पूरे खाली वलसाड़ में ही नहीं, वलसाड़, पार्डी, धर्मपुर, खेरगांव, वापी, सेलवास, सबके एक पूरा वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के टोटल पेड़ हर साल लगा के एक उसको हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। आज का ये पूरा कार्यक्रम, तो उसके लिए कितने समय का आपने तैयारी करी थी? आज 2 महीने से हम सतत पूरी टीम उमिया सोशल की टीम लगी रही थी, जो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोगों को एक एहसास करवाया कि वलसाड़ क्या है, उसकी व्यथा क्या है, वो सब उन्होंने बताने के एक नाटक के द्वारा कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना जोड़ना चाहूंगी कि जो मुहिम आज अशोक जी ने ली है, संकल्प लिया है, मैं चाहती हूँ कि वलसाड़ के ही नहीं हमारे देश के पृथ्वी पे हर मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़ एक मनुष्य अगर हर व्यक्ति अगर लगाए, तो मुझे लगता है कभी भी हमें वो जो दुविधा हमने देखी, जो आज जो दर्द हमने देखा है मनुष्य के जीवन के लिए, वो हमें कभी वो दर्द देखने को नहीं मिलेगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, उज्जवल भारत न्यूज़ बनने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारा विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। चैनल को जरूर देखते रहिए। ये टेलीकास्ट होगा कल खास विशेष समय पर 4 PM चाय पे चर्चा में विशेष मुलाकात कर सबके साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी चहेती एंकर उज्जवल भारत की चीफ एडिटर मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत की न्यूज चैनल की ओर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।